Good morning, friends. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today, I'm taking the lecture number 39 for the subject which is the manufacturing technology. So, as we are discussing in the previous series of the lectures about the different types of the discussions, as our the previous discussions which is focused on the certain kind of the test which is to be performed on the molding sand, right? And the also we are discussing some of the molding processes which is to be used in the casting processes. So as we previously discussed that our the second portions of our chapter number 2 which will be now start officially, and before that we are starting that portions, I just clarify one things. The second portion which is regarding only the different types of the casting processes and the certain kind of the defect which is generated in the casting process. So before to start the different casting process, we have to understand the some of the nomenclatures which is to be used in the casting process. So we can say as a that is known as a gating system, right? When we start the pouring of the molten metals into the mold, so whenever we pour the molten metal into the mold, the pouring which will be start through the gating systems. So first of all we have to understand about the gating system, and then we are move forwards to the different types of the casting processes. So let's start our today's discussions which is on the gating system. So which is the topic which is to be covered in these sections, which is about the design and manufacturing of the gating system, then the pouring basin, then the sprue, then runner, ingates and risers. These elements which is used in the gating system, as you can see on your screen, the different this part of that gating systems are represented through the one of the sketch on your screen. So here you can understand which is the first topmost portions, which is the pouring cup through which the liquid molten metal which is to be poured on that, and through the sprue it will be enter into the mold. And there is a two slots which is given on the right hand side, as you can see on your screen, is that which is the runner and the runner extensions which is given on the right hand side of your schematic figures, which is used for the cares to the castings, and what are the applications of it that we can discuss in these lectures in detailed manners. So first we start with the gating system. What is the gating system? The gating system is referred to all those elements which are concerns with the flow of the molten metals. तो गेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये सारे जो है वो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक कंसर्न्स जिसका रहता है, जिसके साथ जब एक लिक्विड मेटल जो है मोल्टेन मेटल जो है वो फ्लो के साथ जो है जिस एलिमेंट का कंसर्न रहेगा, वो सारे एलिमेंट जो है वो गेटिंग सिस्टम के अंदर आएंगे, और इस सारे एलिमेंट को हम जो है वो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अ गेटिंग सिस्टम इज रिफर टू ऑल दोज एलिमेंट्स which are concerns with the flow of the molten metal from the ladles to the mold basin cavity. हम लेडल में से जब लिक्विड मेटल को मोल्टेन मेटल को जब मोल्ड के अंदर डालेंगे, तब वो जिस पार्ट के साथ वो कंसर्न्स करेगा लिक्विड मेटल्स, जब उसका फ्लो जो है वो जिस पार्ट के साथ कंसर्न करेगा, वो सारे मेटल जो सारे एलिमेंट्स जो है वो गेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं. सो यहाँ पे एक अच्छा सा एक जो है वो स्केमेटिक जो है वो आपको दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो पूरा चीज़ जो है वो है क्या. गेट किसको बोलते हैं, कास्टिंग किसको बोलते हैं, रनर किसको बोलते हैं, राइजर किसको बोलते हैं, स्प्रू बेसिन किसको बोल सकते हैं. तो आप देखिए कि जब से
मैं आपको इजीली ये सारे फंक्शंस यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि आपके पास एक वेसल के अंदर, एक लेडल के अंदर जो है वो लिक्विड मेटल है। आपने क्या किया कि सबसे पहला पोर्शन आएगा प्योरिंग कप, जो सबसे बड़ा ऊंचा दिख रहा है वो, वहाँ पे आप जो है वो लिक्विड मेटल को डालेंगे, राइट। उसका फ्लो जो है वो स्प्रू यानी एक नोज़ल जैसे, एक नोज़ल जैसा एक पार्ट होता है, वो नोज़ल के थ्रू जो है वो स्प्रू बेस तक जो है वो मोल्टेन मेटल वहाँ पे इकट्ठा होगा। अब स्प्रू बेस के थ्रू जो है वो क्या करेगा, एक रनर सिस्टम रहता है, पूरा रनर, राइट। वो रनर चैनल के अंदर जो है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रनर जो चैनल रहता है उसके अंदर अलग अलग गेट लगे होते हैं, राइट। गेट नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे होते हैं ना पूरी सोसाइटी के अंदर। तो रनर जो है वो एक, आप सोसाइटी समझिए, एक पैसेज समझिए। उस पैसेज के अंदर जो है वो अलग अलग गेट है। आप गेट जैसे जिस गेट को ओपन करोगे उस गेट से जो है वो लिक्विड मेटल का फ्लो जो है वो कास्टिंग मोल्ड के अंदर जो है वो एंटर करेगा। अब जैसे ही आपका पूरा जो है वो लिक्विड मेटल जो है वो कास्टिंग के अंदर पूरा फिलअप हो गया, तब आप देखिए कि कास्टिंग के ऊपर एक राइज़र लगा हुआ है। वो राइज़र क्या बताएगा कि अगर वो फ्लो जो है वो लिक्विड मेटल का उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो इंडिकेट करता है कि अब मोल्ड के अंदर, मोल्ड जो है वो पूरा जो है वो लिक्विड मेटल के फ्लो से पूरा भर चुका है। अब इसमें ज़्यादा लिक्विड मेटल को जो है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। राइज़र जो है वो उसकी फुलिंग कैपेसिटी जो है वो वहाँ से इंडिकेट करेगा। सो ये सारे एलिमेंट जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं, राइट। सो द वेरियस एलिमेंट्स दैट कम्स अंडर द गेटिंग सिस्टम्स आर प्योरिंग बेसिन, और वी कैन से एज अ कप, then the sprue base well, then the runner extensions, ingates and risers। तो ये सारे के फंक्शंस जो है मैंने एक ही जो है वो स्कीमेटिक के अंदर से जो है वो आपको धीरे धीरे जो है वो पूरा ऊपर से जो है वो समझाने की कोशिश की है। अब हम सारे फंक्शंस को 1 by 1 जो है वो देखते चले जाएंगे। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गेटिंग सिस्टम्स। क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स और फंक्शंस होते हैं गेटिंग सिस्टम के। तो ए गेटिंग सिस्टम इज शुड फिल द मोल्ड कैविटी कम्प्लीटली बिफोर द फ्रीजिंग। तो वो पूरा जो है वो भर जाना चाहिए बिफोर द फ्रीजिंग, राइट। इंट्रोड्यूस अ लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी विथ अ लो विस्कोसिटी एंड अ लिटिल टर्बुलेंस। यहाँ पे लिक्विड मेटल जो है इनटू द मोल्ड कैविटी विद द लो विस्कोसिटी एंड द लिटिल टर्बुलेंस के साथ एंटर होता है, सो दैट अ मोल्ड इरोजन्स, मेटल ऑक्सीडेशंस एंड गैस पिकअप इज प्रिवेंटेड। तो ये तीनों चीज़ जो है मोल्ड का इरोजन नहीं होना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशंस नहीं होना चाहिए, और गैस जो है वो अंदर एंटरप्ट नहीं होना चाहिए, उसको आपको प्रिवेंट करना है। तो ऐसा एक फुल प्रूफ जो है वो गेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इट इज़ हेल्प टू प्रमोट द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स फेवरेबल फॉर अ प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशंस। ये प्रॉपर जो है वो प्रमोट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स को फेवरेबल कंडीशंस में एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशंस को बचाने से। Incorporates a traps for a separations of the non-metallic inclusions which are either introduced with the molten metal or are present in the gating system। या तो वो जो है वो नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स हो सकता है या फिर इंट्रोड्यूस हो सकता है, और विच इज प्रेजेंस इन दी गेटिंग सिस्टम। सो these are the basic requirements or the functions of the gating systems। Now we start first with the purine base। अब उसका क्या फंक्शंस है वो हमने पहले जो है वो आप अगर ये पर्टिकुलर फिगर को जो नहीं समझ पा रहा है तो फिर आप वो फिगर भी जो है हमने पहला वाला बेसिक फिगर जो समझा था जिसमें पूरा गेटिंग सिस्टम आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ से भी इजी है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, मोस्टली आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये राइटअप जो है वो आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। The molten metal is poured into the pouring basin, which is act as a reservoir from which it is moved smoothly into the sprue। तो मोल्टेन बेसिन जो है वो एक रिजर्वियर जैसा है जिसके नीचे एक स्प्रू लगा है, स्प्रू के थ्रू जो मोल्टेन मेटल है स्मूथली जो है वो पास होगा। अ प्योरिंग बेसिन इज मे बी कट इनटू अ कॉप पोर्शंस, वो कॉप पोर्शंस के साथ जो है वो लगा रहेगा। डायरेक्टली और अ सेपरेट ए
dry sand curing basin is may be prepared and used. Molten metal in the curing basin should be full, right? A molten metal in the curing basin should be full होना चाहिए. During the curing operations to avoid the atmospheric air or slag from entering into the mold cavity, आपको उसको पूरा जो है वो फुल करना है ताकि जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो किसी भी तरीके का अगर कोई गैस है, एटमॉस्फेरिक स्लैग है, एयर है, वो उसके अंदर एंटर ना हो, इसलिए आपको पूरा फुल करना है उसको. The molten metal is not directly poured into the mold cavity because it may cause the mold erosions. यानी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है वो मोल्टेन मेटल को सीधा मोल्ड के अंदर जो है वो क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है कि सीधा अगर हम लोग एक हॉट मोल्टेन मेटल्स को सीधा जो मोल्ड के अंदर डालें तो फिर मोल्ड जो है वो इरोज हो जाएगा, घिस जाएगा. इसलिए पूरा गेटिंग सिस्टम के थ्रू उसका फ्लो जो है वो डायरेक्शनल किया जाता है. Sir, the curing basin is also stop the slag from entering the mold cavity by means of the skimmers on the skin cares. It hold back the slag or dirts which float on the top and allow only a clean metals which is underneath it into the sprue. Now the curing basin, अब curing basin जो है वो बेस नीचे लगा रहेगा, or we can say as a strainer course. It is a strainer or a screen with a many small holes. जो है वो एक स्ट्रेनर जैसा छन्नी होती है वैसा होता है, या फिर एक स्क्रीनिंग है जिसके अंदर बहुत सारे होल लगे होते हैं. इट इज़ यूटिलाइज टू मेंटेन ए कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ द फ्लो, जिससे इसका यूज से क्या होता है कि एक कांस्टेंट कंडीशनल फ्लो जो है वो लगा रहता है, मेंटेन रहता है. द स्ट्रेनर इज रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द मोल्टेन मेटल. जो स्ट्रेनर है वो क्या करेगा कि वो मोल्टेन मेटल के फ्लो को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि बेस के अंदर जो छोटे छोटे होल लगे होते हैं, तो जैसे वो स्ट्रेनर फुल हो जाएगा पर एक कांस्टेंट फ्लो के साथ उस होल में से जो है वो पास होता जाएगा. आपको फिगर के अंदर भी ये दिख रहा है, राइट. सो इनटू द स्प्रू एंड इट इज़ हेल्प अ क्विक फिलिंग ऑफ द प्योरिंग बेसिन, जिससे प्योरिंग बेसिन जो है वो अच्छी तरह से पूरा भर जाएगा. एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द स्लैग इनटू द मोल्ड, और इससे जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि एक स्लैग जो है वो मोल्ड के अंदर नहीं आ सकता है. इट इज़ अलाउ ओनली अ क्लीन मेटल, राइट. ये सिर्फ क्लीन मेटल को, बड़े बड़े अगर कोई गड्ढे हो चुके हैं कुछ मोल्टेन मेटल्स के टुकड़े इसके अंदर हैं, तो फिर वो होल जो है उसमें पास नहीं होंगे, यानी स्ट्रेनर जो है वो उसको छन के ही जो है वो बाहर निकालेगा. एंड एंटर इनटू दिस स्प्रू, अब उसको स्प्रू में से उसी को ही वो जाने देगा, राइट. नाउ द प्योरिंग बेसिन और कप वी कैन से देर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ दी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्योरिंग कप्स के साथ जो है वो एक स्प्रू लगा होता है. और लिक्विड मेटल जैसे ही हम लोग प्योर करेंगे तो वो जो है वो धीरे धीरे से जो है वो एक तरीके से उसका फ्लो को कंट्रोल करके प्योरिंग बेसिन जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसका एक कांस्टेंट फ्लो जो है वो स्प्रू के थ्रू जो है वो मेंटेन होता चले, राइट. तो यहाँ पे तो किसी को डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने के अंदर. तो डिफरेंट वो जो प्योरिंग कप्स है उसके डिफरेंट शेप जो है उसके ऊपर जो है वो आपको दिए गए, उस डिफरेंट शेप को जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ द स्प्रू यानी एक छोटा सा जो है वो नोजल जैसा पार्ट. स्प्रू इज द चैनल थ्रू विच द मोल्टेन मेटल इज टू बी ब्रॉट टू पार्टिंग प्लेन्स, जिससे एक मोल्टेन मेटल जो है वो पार्टिंग प्लेन तक जाएगा. वेर इट इज़ एंटर द रनर एंड गेट्स टू अल्टीमेटली रीच टू द मोल्ड कैविटी. वहाँ से जो है वो रनर और गेट के पास जाएगा, जिससे वो अल्टीमेटली मोल्ड कैविटी के थ्रू जो मोल्ड कैविटी के अंदर जो है वो पहुँच सकें. तो स्प्रू का जो कनेक्शंस है वो रनर के साथ रहता है. इफ़ अ स्प्रू इज़ स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल, वो अगर स्ट्रेट है या फिर सिलेंड्रिकल है, देन द मेटल फ्लो वुड नॉट बी फुल एट द स्प्रू, फुल एट द बॉटम. अगर जो है वो सिलेंड्रिकल है, स्ट्रेट है, तो फिर क्या होगा
द मेटल फ्लो इज वुड नॉट बी फुल एट द बॉटम, बॉटम के अंदर जो है उसका मेटल का फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट सम लो प्रेशर एरिया वुड बी क्रिएटेड अराउंड द मेटल्स इन दी स्प्रू, वहाँ पे होने के चांसेस ये हो सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जो है वो जनरेट हो सकता है, एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज वुड बी ब्रीथ इनटू दिस लो प्रेशर एरिया which would be then carried out the mold cavity. To eliminate this problem, a trapped sprue is used. यहाँ से इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो एक तरीके से दूर कर पाए, इसलिए एक ट्रैप्ड जो है वो टैपर वाला जो स्प्रू रहता है, राइट, ऐसा स्प्रू अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एक कांस्टेंट जो है वो प्रेशर जो है उसके थ्रू जो है वो बना रह सकता है। तो इस ऊपर वाले जो प्रॉब्लम को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द रनर। अब रनर क्या करेगा? सो इट इज़ लोकेटेड इन द पार्टिंग प्लेन, जहाँ पे पार्ट होते हैं कोप और ड्रैग के, पार्टिंग प्लेन के ऊपर जो है वो रनर जो है वो लगा रहता है, एंड कनेक्ट टू द स्प्रू इन द इनगेट्स, राइट। वो जो है वो रनर जो है वो इनगेट के थ्रू जो है वो स्प्रू के साथ जो है वो कनेक्टेड रहता है। द रनर्स आर normally made the trapezoidals in the cross sections. रनर जो है वो एज एन साइज की अगर बात करें, शेप की अगर बात करें तो शेप के अंदर वो ट्रेपेजॉइडियल शेप के अंदर क्रॉस सेक्शंस के अंदर होते हैं। द स्लैग ट्रैपिंग टेक प्लेस इन रनर। स्लैग अगर ट्रैप हो जाता है यानी ट्रैपिंग हो जाता है उसका ट्रेपेजोडियल शेप के थ्रू जो है वहाँ पे उसका स्लैग का ट्रैपिंग हो जाएगा। व्हेन अ रनर इज फ्लो द फुल, राइट, जैसे ही रनर का जो फ्लो उसके अंदर फुल हो जाएगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ द मोल्टेन मेटल इज कमिंग फ्रॉम द स्प्रू बेस इज मोर देन द अमाउंट फ्लोइंग थ्रू इट इन गेट्स, राइट। अब वो क्या करेगा कि अगर एक बार जो है वो पूरा मोल्ड जो है वो फुल हो जाएगा, राइट, फिर भी मोल्टेन मेटल जो है वो आता रहता है स्प्रू के थ्रू, तो है वो कहाँ से चला जाएगा? इनगेट के थ्रू जो है वो बाहर इंडिकेट हो जाएगा। ए पार्शियली फिल्ड रनर इज कोजेज द स्लैग एंड एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी। अगर आपका रनर जो है वो पार्शियली फिल्ड है तो फिर विच इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ द रीजन फॉर कोजिंग ऑफ द slag which is enter into the mold cavities. Now the runner extensions. The runner is extended a little further after it is encountered in the gates. A runner is extended a little further. A runner is extended a little further. रनर जो है वो थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, थोड़ा अगर आगे, which is it is encountered into the in gates, right, वो in gate के तक पहुंच जाएगा। This extension is provided to trap the slag. वो extensions क्यों दिया गया है कि आप देखोगे कि रनर जो है वो पूरा एक चैनल जैसा दिख रहा है ना, जहाँ से 2 गेट लगे हुए हैं, राइट, उसको थोड़ा सा जो है वो आगे एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड करने की वजह जो है वो क्या है, जो बेसिकली उसके पीछे का जो एक रीज़न है वो वही रीज़न है कि अगर मोल्टेन मेटल के अंदर किसी तरीके का अगर स्लैग है तो वो स्लैग जो है उस एक्सटेंशन तक जो है वो चला जाएगा फ्लो की कंडीशन के थ्रू, और वहाँ पे जो है वो ट्रैप हो जाए, वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा, राइट। इसीलिए जो है वो रनर एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। नाउ गेट्स और द इन गेट्स, these are the opening through which the molten metal which is enter into the mold cavity. ये जो है वो एक तरीके से ओपनिंग है या फिर गेट बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो एक लिक्विड मेटल मोल्टेन मेटल जो है वो मोल्ड केविटी के अंदर जो है वो घुसते हैं। अब गेट जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, टॉप गेट हो सकते हैं, बॉटम गेट हो सकते हैं। टॉप गेट किसको बोलते हैं? इन दिस टाइप ऑफ द गेट अ मेटल इज एंटर द मोल्ड केविटी फ्रॉम द टॉप, राइट। यहाँ पे क्या होता है, टॉप गेट के अंदर जो है वो लिक्विड मेटल जो है वो आपके टॉप पोर्शन में से मोल्टेन मेटल जो है वो मोल्ड केविटी के अंदर एंटर होगा। केविटी इज फिल्ड वेरी क्विकली। अब उसकी वजह से जो केविटी है मोल्ड केविटी वो बहुत क्विकली जो है वो फिल हो जाएगी। देयरफॉर अ टॉप गेट आर नॉट एडवाइजेबल फॉर दोज मटेरियल विच आर likely to form the drop or turbulence or the waste slag etc. यानी ऐसे मटेरियल्स के लिए जो है वो प्रेफरेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, जिसके अंदर एक ड्रॉस होने के चांसेस है,
या फिर स्लैग होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। नाउ द बॉटम गेट क्या है? दिस टाइप ऑफ द गेट इज यूज्ड व्हेन द मोल्टन मेटल इज एंटर इनटू द मोल्ड केविटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द केविटी। वो क्या करेगा कि वो केविटी को कहाँ से फिल करना स्टार्ट करेगा, तो कि बॉटम जो पोर्शंस रहता है वहाँ से जो है उसको फिल करने का स्टार्ट करेगा। सो इट इज़ टेक प्लेस मोर टाइम टू फिल दी मोल्ड। यहाँ से वो ज़्यादा जो है वो वक्त लेता है मोल्ड केविटी को फिल करने के लिए। तो ये दोनों के बीच जो है वो बेसिक जो डिफरेंस हो सकता है, ये डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होता है। नाउ द राइज़र, ये इस गेटिंग सिस्टम का जो है वो लास्ट एलिमेंट है जो यूज़ होता है। बेसिकली हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये इंडिकेट क्या करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे मोल्टन मेटल से आपका मोल्ड की जो केविटी है अगर फुल हो जाएगी, फिर भी मोल्टन मेटल आता है, तो वो राइज़र में से जो है वो इंडिकेट होता है कि आपका जो मोल्ड केविटी एरिया जो है वो फिल हो चुका है। So most of the foundry metals or alloys is shrink during the solidifications. Most of जो है जो भी metals है, alloys है, वो जब भी उसका solidifications होता है तो वो shrink हो जाते हैं। As a result of the volumetric shrinkage, ये जो volumetric shrinkage होता है इसकी वजह से the voids are likely to form in the casting. इसकी वजह से जो है वो voids जो है वो कास्टिंग के अंदर फॉर्म होते हैं। द एडिशनल मोल्टन मेटल इज फेड इनटू दिस प्लेस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एडिशनल मोल्टन मेटल जो है विच इज़ फेड इनटू दिस प्लेस विच इज टर्म एज ए हॉट स्पॉट्स सिंस इट इज़ रिमेन हॉट टिल द एंड, राइट। एक एडिशनल मोल्टन मेटल्स जो है वो वहाँ पे फील किया जाता है, फेड किया जाता है, और इसको जो है वो हॉटस्पॉट जो है वो बोला जाता है क्योंकि वो लास्ट तक जो है जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं वो हॉट रहते हैं। हेंस ए रिजर्वियर ऑफ द मोल्टन मेटल इज माउंटेड फ्रॉम विच द मेटल कैन फ्लो रेडीली इनटू द मोल्ड केविटी व्हेन इट इज नीड अराइज। दिस रिजर्वियर इज कॉल्ड एज ए राइजर। इसको राइजर जो है बोला जाता है। ए डिफरेंट मटेरियल हैव द डिफरेंट श्रिंकेजेस, राइट। हर एक मटेरियल का जो है वो अलग अलग श्रिंकेज रहता है। हेंस द राइजिंग रिक्वायरमेंट इज वेरी फ्रॉम द मटेरियल, राइट। इसी वजह से जो है उसका राइजिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी होता रहता है हर एक मटेरियल के साथ। एज एन एग्जाम्पल, अ ग्रे कास्ट आयरन इज समटाइम्स मे ए नेगेटिव श्रिंकेज। दिस हैपन बिकॉज with a high carbon and silicon contents, a graphitization is occur which increase the volume and the contracts of the metal shrinkage. Thus a rising is maybe very critical in such conditions. तो इस वजह से जो है कुछ ऐसे मेटलर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो राइजन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। फॉर द मेटल लाइक द एल्यूमिनियम एंड स्टील द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज बीइंग वेरी हाई। वहाँ पे जो है एल्यूमिनियम और स्टील के अंदर एक वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो विच इज़ एलेबरेट ए राइजिंग इज टू बी रिक्वायर्ड, राइट। उस कंडीशंस के अंदर राइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस सॉलिडिफाइड मेटल इन द राइजर इज देन कट ऑफ फ्रॉम द मेन कास्टिंग एंड दी मेल्टेड फॉर दी रीयूज़, राइट। अब वो क्या करेगा कि ये जो राइज़र है तो वो तो एक कास्टिंग के साथ लगा हुआ है, राइट। जैसे सॉलिडिफिकेशन हो जाए तो उसको अलग किया जाता है और वो जो अनवांटेड पीस ऑफ दी सॉलिडिफाइड मेटल है उसको फिर रीयूज़ के लिए मेल्ट करके यूज़ किया जा सकता है। द हायर द राइज़र वॉल्यूम इज लोअर द कास्टिंग यील्ड। So the requirement of the riser is depends on the types of material is to be poured and the complexity of the casting, right। the requirement of the riser जो है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप किस मेटल को जो है वो प्योर कर रहे हो और उसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसके ऊपर जो है वो डिपेंड्स करती है। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द राइजर्स। So here you can see the different kind of the riser functions you can see in the figure. So during the solidifications of the metal which is experiencing the shrinkage which is result in the void or the formations of the creations of the hotspots, ये आप
जैसे लिक्विड मेटल आपने डाला, फिर लिक्विड थोड़ा श्रिंक होगा, फिर और श्रिंक होगा, तो एक बीच में एक सॉलिड स्पॉट जो है वो खाली बन जाएगा. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय फीडिंग द हॉट स्पॉट्स ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशंस. The riser is used to fed the casting during the solidifications. So riser is must solidified after the casting. Riser जो है वो भी solidified हो जाता है after the casting. So riser should be located so that a directional solidification is occur from the extremities of the mold cavity back towards the risers. The thickest part of the casting and last to freeze, the riser should fed directly to these regions. So the riser are the basically three types of risers are used. The first, which is the top riser, second, which is the blind risers, and third, which is the internal risers. So what is the top riser? They are open to the atmosphere. एक तरह से एक एंड जो है वो ओपन होता है एटमोसफियर के अंदर. They tear a most conventional and the convenient to make. Second, which is a blind risers, are completely consolidated inside the mold cavity. It loses the heat slowly since it is surrounded by the molding sands and thus would be more effective. Now the third, which is the internal risers, they are enclosed on all sides by the castings. They are normally used for the casting which are cylindrical in the shapes and have the hollow portions. So these are the three different types of the risers. So in these lectures we discuss the whole gate systems we understand the different parts of the gating systems and how they are worked during the casting process. So in this lecture, if you have any kind of the difficulties in this lecture, you can ask your queries and questions into the comment sections. I will definitely solve your queries and doubts within the same day. So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which will be counted as your online attendance. So this is all about today's lecture. Thank you so much.